हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। इस 2018 में आया था मैं यहाँ पे, so almost more than 3 years I have been already passed here in Philippines. So whatever today I'm discussing, that all is based on my experience, whatever I have just interacted with the Filipino society, Filipino people, whatever I got the information from that all people. So that's a disclaimer for everybody before watching this video. I really love to be in Philippines as well, as I really love my country India. So I'm not gonna criticize anything, or as we know, we have different kind of culture, different kind of climate, different kind of lifestyle. And although in India also we have different kind of various culture, various lifestyle in different region of India. But today I'm gonna discuss something which is very special for me, and whenever I have seen it first time, that was very strange for me as well, because I have never heard about these all things, and I have never thought about these all things. Okay, so that was really something new for me. Before starting this video, welcome back to my channel Medico's My Lifestyle. This is Mohit. Let's start the video. So guys, as you have seen in my thumbnail and title, that today we are going to discuss the 5 different lifestyle that's really different from our country India and Philippines. So before that, I'm gonna tell you one thing, that Filipino people and their culture is very much influenced by Western culture, and I should say this country is very much influenced by the United States, especially by America. Okay, I don't know, this may be because before some time American have been just ruled on this country, so that's why maybe. Now we are jumping on our first topic, and the first point is about the relationship. Okay, अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो इंडिया में हम लोग इतने ओपन अप नहीं होते अपने रिलेशंस को लेके. अगर हम लोग किसी लड़की से प्यार करते हैं, अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, तो we can't be that much open up in front of our parents, because we don't have that kind of culture in our country. Like but यहाँ पे अगर फिलीपींस में बात करो, तो these people are very much open in terms of their relationships. So यही नहीं, अगर कोई लड़की भी बाहर जा रही है तो वो भी अपने पेरेंट्स को बोल के चली जाती है कि मैं आज किसी के साथ डेट पे जा रही हूँ, है ना. और या कोई लड़का जा रहा है तो वो भी बोल के जाता है ना. That's very much, they are very open up with their relationship in front of their parents, in front of their relatives. They don't mind that all things. And अगर हम लोग सोच समझ के, अगर हम इंडिया में अगर ऐसी कंडीशन हो और हम लोग बात करें इन सब चीज़ों की, तो I don't think so that would be a good idea. नहीं, ऐसा करना ही नहीं है. देखो, यही तो गलती करता है इंसान. अगर यहाँ पे मैंने यहाँ तक भी देखा है कि अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, वो लड़की या वो लड़का किसी दूसरे को अभी डेट करने जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स उसके लिए भी उसे अलाउ करते हैं. असंभव, असंभव, असंभव. ओके, सो ये जो कल्चर है, जो रिलेशंस का, जो ओपन अप, जो रिलेशनशिप का जो कल्चर है यहाँ पे, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. एंड आई वाज रियली शॉक्ड व्हेन आई वाज जस्ट टॉकिंग विद वन लेडी. सी इज माई, जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसकी मालकिन है वो. तो जब मैं उससे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो डॉटर है, जो पूरा रेस्टोरेंट चलाती है, वो संडे को जाने वाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे. तो संडे को उनकी दुकान बंद रहेगी, है ना. और क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ओनली संडे को ही फ्री होता है और संडे को ही उसे टाइम दे पाता है, तो इसलिए वो संडे को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर पे जाएंगी. Okay, so that was really strange for me. Like I have never heard about these all things, and especially from parents. I'm sorry. No. I'm sorry. I'm sorry. So now here's the time to discuss the second thing. To be single mom. यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी लेडीज होती हैं जो कि सिंगल मॉम होती है, एंड दैट्स वाई समवेयर रिलेटेड टू द
relationship as well, because in their very small age they used to live in relationship and have boyfriend and girlfriend, that all kind of the lifestyles here in Philippines. So somewhere and somehow that also make them single mom. Okay, and I have seen there are a lot of ladies that they are single mom and they are just living a very luxurious life, and they are just earning for them a lot, and they are just, ladies are not too much dependent on the gents here in Philippines. Although I have observed these ladies are very hardworking. How do I know? Because वही मेरी जो मकान मालिक है वो single mom ये है ना, and she have I think 3 child, or she is taking care of that all in a very nice way, and वो सब लोग पढ़ भी रहे हैं, सब लोग कुछ काम भी कर रहे हैं, and she is very hard working. She used to just get up I think in morning about 3 o'clock or 4 o'clock, and they used to make the stuffs for their restaurants, for the different kind of their business like shops and all. So she is working so hard. So I have observed here that ladies are more hardworking than the gents here in Philippines. यहाँ पे मैंने कुछ different देखा, and that was very strange for me, because being a single mom in Indian society, I don't think so it's a good idea, or a that would work or not. I don't know. So I think you got my point. और जब भी हम लोग लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फूड कल्चर की भी बातें करते हैं. तो अगर फूड की बात करूँ तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मीट वगैरह खाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं. हम लोग इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया. सो अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो हम लोग ज़्यादातर वेजीज खाना पसंद करते हैं, वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं. कभी कभी ओकेजनली मीट वगैरह जो लोग कुछ लोग खाते हैं वो लोग खाना पसंद करते हैं. ओके, बट अगर मैं फिलीपींस की बात करूँ, दे यूज टू ईट a lot of meat always. Okay, and especially they used to eat pork, beef and chicken as well. Okay, so ज़्यादातर मैंने इन लोगों को देखा कि ये लोग पोर्क बहुत खाते हैं. ठीक है, पोर्क मतलब जो सुअर का जो मांस होता है वो लोग बस कर पापी बस कर ये लोग बहुत खाते हैं. and that is very strange for me. and how that was strange for me, क्योंकि जब हम लोग SM सेंटर वगैरह या फिर कहीं पे ऐसी जगह पे जाते आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे ये लोग जो बैम्बू जो होते हैं, बड़े बड़े बैम्बूज होते हैं, उसमें सुअर को पूरा का पूरा कंप्लीट जो पिग होता है रखते हैं. एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी. एंड दैट्स देयर कल्चर. दे यूज टू ईट pork in their dinner, in their lunch, in their breakfast as well. They used to use meat products. Okay, so that was also strange for me here in Philippines. I've observed these kind of the things in India. और अगर मैं next point की बात करूँ तो point number 4, that was really strange for me when I have observed. मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तो मैं एक सैलून गया था अपने हेयर कट वगैरह के लिए, एंड आई हैव ऑब्जर्व कि वहाँ पे जो लोग जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, दे वर वर्किंग देयर, एंड उनके साथ साथ कुछ जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो भी काम कर रहे थे ना. एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी, बिकॉज आई हैव नेवर ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ द थिंग्स इन इंडिया. लाइक इंडिया में अगर जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी मैंने देखा है, और मैंने मूवीज़ वगैरह में ऑब्जर्व किया है ये सब कुछ. तो उनकी एक अलग कम्युनिटी होती है, वो लोग मांगते हैं, कुछ अलग अलग काम करते हैं जिनसे कि, लेकिन वो लोग एक नॉर्मल जो मेल या फीमेल जैसी ज़िंदगी जीते हैं, काम करते हैं सैलून्स में, शॉप्स में, वैसा मैंने इंडिया में कभी ऑब्जर्व नहीं किया. बट यहाँ के लोग इतने ज़्यादा ओपन अप हैं इन सब चीज़ों को लेके कि ये लोग अपने साथ, इनके साथ, जैसे जो नॉर्मल बंदे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे ही वो लोग भी काम कर रहे हैं. दे आर वेरी ओपन अप विद ईच अदर. और आई डोंट थिंक सो कि उनको फील भी होता होगा ये सब चीज़ें कि हम लोग कुछ अलग हैं सोसाइटी से या नहीं है. मैंने सैलून में ही नहीं, बहुत सारे स्टोर्स में, बहुत सारी रेस्टोरेंट्स तक में मैंने देखा है कि वो लोग काम करते हैं. एंड दैट्स अ वेरी big good point for the Filipino peoples, and I really respect everybody who are doing these all things, because they are also somewhere part of our society. So that was the really strange thing for me that I have observed the first time. और इसके साथ साथ जो आखिरी जो 5वां पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ. that's very हम लोगों को सीखना भी चाहिए इंडिया वालों को उससे कि the girls are more hardworking, they are more dedicated for their job. I've seen a lot of boys, a lot of men who are just chilling beside the road all time, and they used to eat or they used to drink whatever they want to. But I haven't seen girls like this.
I have seen girls who are working very hard all daytime and night time as well. I have observed the girls while going and coming through the jeepney from their shop or from their stores or from their job. So in India we don't have that kind of the culture. We have, but that is not that much popular culture, like girls are working and boys are sitting inside the house. So यहाँ पे ये चीज़ मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी जब मैंने देखा कि लड़कियां या फिर लेडीज़ ज़्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू बॉयज़. तो जहाँ भी स्टोर पे जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे, आप सबको गर्ल्स ही मिलेंगे वहाँ पे. तो दे यूज टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क हेयर एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग एज वेल. एंड आई थिंक समवेयर हम लोगों को, राजस्थान और हरियाणा वालों को इन सब चीज़ों से सीखना भी चाहिए कि कैसे, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कुछ मूवीज़ में भी, कुछ कल्चर भी है हमारे इंडिया में कहीं कहीं जगह पे कि वो लोग लड़कियों को नहीं बाहर निकालते हैं घर से कि नहीं लड़की है, काम नहीं करने जा सकती बाहर, या फिर इसे नहीं जाना चाहिए, पुरुष है तो वो ही बाहर जाएगा, लड़की है तो नहीं जा सकती. सो दिस काइंड ऑफ द we should learn something from these kind of the culture. So that was really strange for me because I have observed first time that girls are more hardworking, girls are more dedicated for their jobs and for their work as compared to boys here in Philippines. Although मैंने बात तो इस वीडियो में यही की थी कि मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा कि एक और पॉइंट डाल देता हूँ, तो मैं 6 पॉइंट बता रहा हूँ. धूप देख रहे हो कितनी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप होती है यहाँ पे आजकल. सो 6 पॉइंट मैं डालने वाला हूँ. और 6 पॉइंट ये है कि यहाँ की जो ग्रीटिंग करने की जो स्टाइल है, दैट्स वेरी यूनिक. आई हैवंट सीन इट बिफोर इन इंडिया. हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, जब भी हम किसी अपने बड़े से मिलते हैं या तो हम लोग क्या करते हैं, उनके चरण वगैरह छूते हैं ना, पैर वगैरह छूते हैं और उनको नमस्ते राम राम ये सब कुछ करते हैं. ओके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे पैर वगैरह कोई नहीं छूता है. यहाँ पे ग्रीटिंग करने की एक अलग स्टाइल है. उनका हाथ अपने हाथ में लो, फिर अपने सर से टच करो. That's very different. You would able to see in this pic, I think. Okay, so these are different kind of greeting styles I have observed here only in Philippines. So that is also one point that was strange for me, and I think that's a lovely thing, and that's a lovely idea to greet anyone. So that was the last point for this video. अभी का मौसम यहाँ का है ना बड़ा धूप वाला है, और दोपहर के अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 बज रहे हैं ना, 1:30. ओके, तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है. अभी मैं बाहर निकला था और बड़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, तो मैं अंदर आ गया है ना. तो यही था आज की इस वीडियो में. आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर पसंद आया होगा. कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल फिलिपिनो पीपल की से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा. एंड ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी इस कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और हम सबको ये सब पता होना चाहिए. और कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोग हम रख लेंगे, हम लोग सीख लेंगे इन सब से, और तो क्या हो सकता है ना. और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आएगी. अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ऐसे ही कोई टॉपिक अगर आपको और कुछ देखने हो तो प्लीज़ सजेस्ट भी कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और जो पसंद आया वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम अहेड. प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए.